آئیے لے چلتے ہیں 14ویں شتابدی میں فیروز شاہ تغلق کے بسائے ہوئے شہر اتر پردیش کے جونپور میں، جسے تاریخ میں شیراز ہند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلم تہذیب و علم کا سینٹر رہا ہے۔ 1362 میں بنا شاہی قلعہ ہو، اس کے اندر کی یہ مسجد حمام گھر ہو، یا 1408 میں ہندو مسلم کلا کی جیتی جاگتی مثال اٹالہ مسجد ہو، جھنجری مسجد ہو، یا دیگر عمارتیں، یہ سب جونپور کے سنہری اتہاس کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور آپ سے کہہ رہی ہیں کہ جب کبھی ادھر آئیں تو ہمارا دیدار ضرور کریں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے جونپور کے سپاہ میں ایک شام حاجی رفیق احمد صاحب کے نام آل انڈیا مشاعرے کا خاص ویڈیو۔ حاجی رفیق احمد صاحب اس مشاعرے کو سننے کے لیے سنگاپور سے تشریف لائے تھے۔ حاجی رفیق احمد صاحب ایک نیک دل اردو نواز شخصیت ہیں۔ یوں تو وہ کاروبار کے سلسلے میں سنگاپور رہتے ہیں، لیکن سنگاپور میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی تہذیب کو نہیں بھولے ہیں۔ دوسری اور اس مشاعرے کی سرپرستی فرمائی اردو نواز شخصیت، مشاعرے کو اپنا تعاون دینے والے، جی ہاں، نیک دل خوبصورت انسان جناب شیخ صلاح الدین صاحب دیدار گنج۔ وہ سعودی عرب میں ہی بیٹھ کر اس مشاعرے کو سن رہے تھے، وہیں سے اس مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے تھے، شورا اکرام کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ شمع فروزہ رہے جناب ابو الجیس آزمین صاحب، مشاعرے کی صدارت کی جناب ارشد خان صاحب نے، جو سماجوادی پارٹی کے راشٹری مہا سچو ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب امام الدین صاحب کا، جو جونپور کے AIM کے لیڈر ہیں، اور شکر گزار ہیں عرفان بھائی منڈیار کے۔ کیا کہنا فلک سلطان پوری اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ ملا جاتا ہے گھوڑے کا بدن تو روز سختی سے، مگر بیچارے ہاتھی کی کبھی مالش نہیں ہوتی۔ ملا جاتا ہے گھوڑے کا بدن تو روز سختی سے، مگر بیچارے ہاتھی کی کبھی مالش نہیں ہوتی۔ ربر کے جوتے ہی تو مفلسی کی لاج رکھتے ہیں، یہ وہ جوتے ہیں جن پر عمر بھر پالش نہیں ہوتی۔ آئیے ایک طنزیہ اور مزاحیہ شاعر کا استقبال کرتے ہوئے ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔ جناب کمبخت جونپوری سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اپنی ہاسیہ ویانگ کی رچنائیں اور کویتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہت ہی خوبصورت سی گفتگو اور طنزیہ اور مزاحیہ شاعری۔ جناب کمبخت جونپوری کی اپنی شناخت ہے، یقیناً انہوں نے ایک عرصے تک طنز و ظرافت کی شاعری کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج ان کی شاعری کے ساتھ ہم اپنے مشاعرے کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں محترم کمبخت جونپوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ قربان جائیے گا ہمارے پلان کے، پرچے نکال لائے ہیں سب امتحان کے، نابالغی کے دور میں یہ حال ہے میرا، پیغام روز آتے ہیں زینت امان کے۔ ارے بھیا ایک خطا میں ندیم صاحب کی نظر کر رہا ہوں۔ ارشاد علی سن رہا ہوں سر۔ حالات ندیم بابو کے مت پوچھئے جناب، حالات ندیم بابو کے مت پوچھئے جناب، مرتے ہیں یہ ہمیشہ۔ حالت ندیم بابو کے مت پوچھئے جناب، مرتے ہیں یہ ہمیشہ نام و نمود پر۔ حالت ندیم بابو کے مت پوچھئے جناب، مرتے ہیں یہ ہمیشہ نام و نمود پر۔ یہ شاعروں کو شعر پڑھانے میں رہ گئے، یہ شاعروں کو شعر پڑھانے میں رہ گئے، بیگم فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر۔ شاعروں کو شعر پڑھانے میں رہ گئے، بیگم فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر۔ کیا کہنا۔ اور ایک خطاب سماعت فرمائیے، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان پاکستان چلے جائیں، تو اس پر دیکھیے، انگریزوں کو بھگانا تھا سلیمان کہاں تھے، انگریزوں کو بھگانا تھا سلیمان کہاں تھے، تیرے یہ بھڑکاؤ بیان کہاں تھے، تیرے یہ بھڑکاؤ بیان کہاں تھے۔ اور سرحد پہ کٹ گئے عثمان و حمید جب، سرحد پہ کٹ گئے عثمان و حمید جب، شیو سینا کہاں اس کے جوان کہاں تھے۔ سرحد پہ کٹ گئے عثمان و حمید جب، شیو سینا کہاں اس کے جوان کہاں تھے۔ اب ذرا سا بات فرمائیے، بڑھاپے میں جب مجھ کو سوجھی جوانی،
बुढ़ापे में जब मुझको सूझी जवानी तो एक महलका से किया छेड़खानी। बुढ़ापे में जब मुझको सूझी जवानी तो एक महलका से किया छेड़खानी। और पड़ी सर पे चप्पल तो घबरा के बोले, पड़ी सर पे चप्पल तो घबरा के बोले, लगती हूँ मेरे पोते की गाली। पड़ी सर पे चप्पल तो घबरा के बोले, लगती हो तुम मेरे पोते की नानी। वाह, बच्चों ने कहा है नया पढ़िएगा तो इरशाद इरशाद समाज फरमाइए। आतंकवाद पर पैरोडी है जी। मरते हैं जहां लाखों इंसान, एक दो का भला कम क्या होगा। मरते हैं जहां पैरोडी है, मरते हैं जहां लाखों इंसान, एक दो का भला कम क्या होगा। है रस्म जहां की खूने दी वापू शिशो मातम क्या होगा। है रस्म जहां की खूने दी वापू शिशो मातम क्या होगा। और हर शब्द में जलाई जाती है कमबख्त गरीबों की बस्ती, हर शब्द में जलाई जाती है कमबख्त गरीबों की बस्ती। जब रात है ऐसी मत वाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। जब रात है ऐसी मत वाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। एक तस्मत फरमाए, हरीफों ने जलाकर आसियां उनको मिटाया है, हरीफों ने जलाकर आसियां उनको मिटाया है। गरीबों के लहू से देश में होली मनाया, गरीबों के लहू से देश में होली मनाया है। अब खिले हैं फूल नफरत के हजारों उनके गुलशन। जी जी, खिले हैं फूल नफरत के हजारों उनके गुलशन में। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, बहारों फूल। और आजकल के हालात पर एक तस्मात फरमाइए। इरशाद 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 काका भैया, फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और शेर देखें इरशाद कि नाली बनाने को बीटेक चाहिए, नाली बनाने को बीटेक चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एमटेक चाहिए। वाह, बच्चों को पढ़ाने के लिए एमटेक चाहिए। और कमबख्त को हैरत है इस संविधान पर, कमबख्त को हैरत है इस संविधान पर। कानून बनाने के लिए अंगूठा टेक चाहिए, कानून बनाने के लिए अंगूठा टेक चाहिए। क्या कहना क्या कहना। इरशाद इरशाद कि प्रजातंत्र का बजा नगाड़ा, प्रजातंत्र का बजा नगाड़ा राजनीति का खुला अखाड़ा। क्या कहना। प्रजातंत्र का बजा नगाड़ा राजनीति का खुला अखाड़ा। आवाज निरक्षर देश चलाऊं, आज निरक्षर देश चलाऊं, तू डिग्री ले बेचा गुब्बारा। आज निरक्षर देश चलाऊं, तू डिग्री ले बेचा गुब्बारा। इरशाद इरशाद इस वास्ते वो सारे जमाने से छट गई, इस वास्ते वो सारे जमाने से छट गई। काली बहुत थी इसलिए बुढ़े से पट गई। वाह, इस वास्ते वो सारे जमाने से छट गई। काली बहुत थी इसलिए बुढ़े से पट गई। और चेहरे का क्या कसूर फरिश्तों की भूल, चेहरे का क्या कसूर फरिश्तों की भूल थी। वो दिल बना रहे थे से आई उलट गए। क्या कसूर फरिश्तों की भूल थी। क्या कहना क्या वो कहना। दिल बना रहे थे साई उलट गए। अरे बैठिया इरशाद कौन कहता है कि बीवी मेरी हरजाई है, कौन कहता है कि बीवी मेरी हरजाई है। मुझको है नाज जो उसमें पारसाई है। वाह वाह वाह, मुझको है नाज जो उसमें पारसाई है। अब मैं था परदेश यहाँ लग गई बच्चों की कतार। मैं था परदेश यहाँ लग गई बच्चों की कतार। हम बयाबा में हैं यहाँ घर में बाहर आई। हम बयाबा में हैं यहाँ घर में बाहर आई है। और एक हज़रत समाज फरमाइए, अभी हाल ही में प्रधानी के चुनाव हुआ है, हाल ही में प्रधानी के चुनाव हुआ है। उस पर चंद बातें सुनिए। मतलब है कैली एक काम जवानी माँ हम खराब है प्रधानी। वाह, कैली एक काम जवानी माँ हम खराब है प्रधानी माँ। कैली एक काम जवानी माँ। पर्चा भरते गांव पर लुक्खा हो गए हमारे साथी। वाह, पर्चा भरते गांव पर लुक्खा हो गए हमारे
साथी हमरे पाछे ऐसे घूमे जैसे चले बराती। वाह, हमरे साथी पाछे ऐसे घूमे जैसे चले बराती। अब मजे का पैसा खर्च किया हम इनकी मेहमानी माँ। वाह भाई प्रधान, क्या कहना, क्या मजे का पैसा खर्च किया हम इनकी मेहमानी माँ। हम खड़ा भय प्रधानी माँ। और रघु चाचा से कहली कॉलोनी तोहे देवे। वाह, रघु चाचा से कहली कॉलोनी तोहे देवे। ललई फुफा से कहली आमंत्रण तोहका करबे। वाह वाह, ललई फुफा से कहली आमंत्रण तोहका करबे। बुधई मामा कह लौकी चढ़वौली अपनी छानी माँ। हम खड़ा भय प्रधानी माँ। वाह वाह वाह, कहली ये काम जवानी माँ। क्या कहना, क्या कहना। अब बुधना मामी का गोड़ पकड़। आखिरी बंद है, आखिरी बंद है, सुन लीजिए जी। अच्छा ठीक है, एक हजल सुन लीजिए। हाँ, बुधना मामी का गोड़ पकड़ हम कहली रखे खियाल। बुधना मामी का गोड़ पकड़ हम कहली रखे खियाल। मामी हमरे मुस्काई के बोली नीति है ननद के लाल। हमका खतरा रहा बुझात मामी की मुस्कानी माँ। हम खड़ा भय प्रधानी माँ। कहली ये काम जवानी। हम खड़ा भय प्रधानी माँ। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इरफान अहमद मुंडियार साहब का, जिनकी दावत पे ये मुशायरा हमने कवर किया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे फैज अहमद फिरोज और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जिशान खान। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। मोहतरम इंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था। उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो। एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मॉन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।